علامہ مفتی صفوت حسین برکاتی رضوی قادری مدظل ہلالی۔ مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ کی بارگاہ اتنی پیاری بارگاہ، اتنی عظیم الشان بارگاہ، آپ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ دنیا میں اگر بنگلہ دیش میں ہم چیف منسٹر سے ملنا چاہیں، ہم پرائم منسٹر سے ملنا چاہیں، ہم پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش سے ملنا چاہیں، ڈائریکٹ مل نہیں سکتے، ہم کو اس کے پی اے کے پاس جانا پڑے گا۔ جب پی اے کے پاس پہنچیں گے تو پی اے ہمیں پرائم منسٹر سے ملا دے گا، ہمیں صدر جمہوریہ سے ملا دے گا، ہمیں چیف منسٹر سے ملا دے گا۔ جب بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر کے پاس بغیر پی اے کے مل نہیں سکتے، بغیر پی اے کے جا نہیں سکتے، تو یاد رکھنا، اے قادریو غوث اعظم کا دامن کیوں پکڑا؟ اے چشتیو غریب نواز کا دامن کیوں پکڑا؟ اے حسینیو حسین پاک کا دامن کیوں پکڑا؟ تو مجھے کہہ لینے دو، میرے رسول کونین کے تاجدار ہیں، میرے رسول نبیوں کے امام ہیں، میرے رسول رسولوں کے سردار ہیں۔ ان کی بارگاہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچیں گے؟ ان کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے غوث اعظم کا سہارا لے لیا ہے، غریب نواز کا سہارا لے لیا ہے۔ জোরে বলুন, আপনারা বুঝতে পারছেন দাদা? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু একটু কষ্ট হবে, আপনারা কি করব? আমি তো ভালোভাবে বাংলা বলতে জানি না, কিন্তু আমি এত জানি কি আপনি উর্দু আর হিন্দি বুঝতে পারছেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হযরত মুকররম गौस आजम का सहारा लिया, गरीब नवाज का सहारा लिया, और सैयद शाह अहमद सरकुटी का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह तैयब अली सरकुटी का सहारा लिया, हुजूर मखदूम समनानी का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह ताहिर अली सरकुटी का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह वारिस आलम पना का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह मसरूर और मसूद कलीमी का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह आला हजरत अजीमुल बरकत का सहारा लिया, हुजूर सैयद शाह बरकतुल्लाह का सहारा लिया। हम वसीले वाले हैं, हम वास्ता वाले हैं, डायरेक्ट हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, इसलिए कि हम जानते हैं जो छत के ऊपर डायरेक्ट चढ़े सीढ़ी हटाकर तो उसका पांव टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है। हम डायरेक्ट चढ़ करके ईमान को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए हम सहारा लेकर रसूल की बारगाह तक पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। हर छोटा हर सबक डायरेक्ट नहीं सीखता, किसी न किसी बड़े से सीखता है। ए बांग्लादेश के सुन्नी मुसलमानों, ये तरीका तुमने कहां से सीख लिया कि रसूल कौनैन तक पहुंचने के लिए गौसे आजम के सहारे की जरूरत, गरीब नवाज की जरूरत, अच्छे पीरो मुर्शिद के दामन की जरूरत, ये सबक तुमने कहां से हासिल किया? अगर मैं सवाल करूं तो आपका जवाब यही होगा, बरकाती बोल क्यों नहीं देते? हमने उस सांप से सीखा है जो सांप गारे सौर के अंदर रह करके 600 बरस तक मुस्तफा जाने रहमत का इंतजार किया है। प्यार से बोलिए, अपनारा सांप के की बोलें? बोलिए, सांप के सांप ही कहते हैं ना? सांप को क्या कहते हैं? ए बाबू देखा है? देखे छो? ये तो छोटा है तो अच्छा, ए देखो ये तो छोटा है। अरे सांप बड़ो हुए सांप। प्यार से बोलिए। आपने जवाब दिया कि हमने सांप से सीखा। मैंने कहा वो कैसे सीखा? जवाब मिला वही सांप है। जनाबे ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले नबी बनकर आए,
ایک جگہ پہ تقریر کر رہے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں، لیکن اسٹیج کے نیچے ایک سانپ ہے۔ میرے عیسیٰ آنے والے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ اتنے اچھے نبی ہوں گے، ان کا چہرہ بے مثال ہوگا، ان کی آنکھیں بے مثال ہوں گی، ان کے لب مبارک بے مثال ہوں گے، ان کے پشت انور پر نبوت کی مہر ہوگی، وہی آخری پیغمبر ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہ ہوگا۔ اے لوگو، اس نبی کو دیکھنا تو ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے اقرار کر کے۔ سانپ نیچے سے نکلا، سرکار عیسیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور আমি একটা কথা বলতে চাইছি। জনাবে ঈসা نے فرمایا বলুন কি বলতে চাইছো? सांप ने अर्ज किया আমরা তো সাপ, একটা কথা বলে দিন, আমি যদি দেখবার ইচ্ছা করব তো আখরি पैगंबरকে দেখতে পারবো या না দেখতে পারবো? বলুন। জনাবে ঈসা ने फरमाया हाँ हाँ, যদি দেখতে চাও तो तुम देखते पारबे। सांप ने अर्ज किया हुजूर कहां और कैसे देखूंगा? जनाबे ईसा ने इरशाद फरमाया वो मुस्तफा मक्के में पैदा होंगे, जन्म मक्के में लेंगे, लेकिन 53 बरस तक मक्के में रहकर वो मुस्तफा मदीने के लिए मक्का छोड़कर चले जाएंगे। रास्ते में पहाड़ के ऊपर एक गड्ढा होगा, गड्ढा को एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे में मुस्तफा जाने रहमत 3 दिनों तक ठहरेंगे। ऐ सांप, अगर तू देखना चाहता है तो उस गड्ढे में चला जा और छुप करके रह जा। वो मुस्तफा जब गड्ढे में जाएंगे तो माथे की आंख से उनका दीदार कर लेना। झूम के बोलिए। सांप आया था, उस गड्ढे के अंदर छुप करके बैठा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौका आ जाता है कि जब मुस्तफा जाने रहमत प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए मक्के की सुनहरी वादी में 53 बरस तक सरकार ने जिंदगी गुजारी। खुदा का हुक्म हुआ मुस्तफा मक्का छोड़ो, मदीने चलो। जब सरकार मदीने के लिए निकले, साथ में अबू बकर सिद्दीक हैं। उस गार के पास जाकर सरकार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम करना चाहा। ऐसे आलम में सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, अभी आपको जाना नहीं है, आगे আমরা যাবো, তারপর আপনি যাবেন। सरकार ऊपर है, सिद्दीक नीचे गए और जब अंदर गए तो गड्ढे को साफ किया, गड्ढे को साफ किया। साफ करने के बाद सोचा कि सरकार को आवाज दूं, लेकिन नजर पड़ी कि उस गड्ढे में सुराख है। गड्ढे में सुराख, सुराख सिदरो है, गड्ढे के अंदर सिदरो है। गिनती शुरू किया, 1 सुराख, 2 सुराख, 3 सुराख, 4 सुराख, 5 सुराख, 70 सुराख को गिन लिया। दिल ने सोचा या अल्लाह, हो सकता है इस गड्ढे के अंदर जो सुराख है उसमें कोई सांप छुपा हो, कोई बिच्छू छुपा हो, मेरे आका आएंगे, डस लेगा, तकलीफ होगी। ठहरो। अपने रुमाल को लिया और लेकर के फाड़ना शुरू किया। एक एक टुकड़ा फाड़ते रहे, गड्ढे के मुंह में लगाते रहे। एक सुराख को बंद किया, दूसरे सुराख को बंद किया, तीसरे सुराख को बंद किया। रवायतें मिलती है 60 और 9 यानी 69 सुराख बंद, 1 सुराख बाकी। चादर खत्म, करें तो क्या करें? बैठ गए अपना पैर फैलाकर और अपना तलवा उस सुराख के मुंह पे लगा दिया। आवाज दिया या रसूल अल्लाह अंदर आइए। नबी गए और जैसे नबी गए सिद्दीक के जांघ पर सरकार ने सर रखा और रख के आराम करने लगे।
لیکن سوراخ کے اندر رہنے والا وہ سانپ بے چین ہو گیا، وہ سانپ بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا سانپ تو نے تو ابھی نبی کو دیکھا نہیں ہے، بولو بولو تم نے تو دیکھا نہیں ہے، بے چینی کیسی، بے قراری کیسی، کیسے پتا چلا کہ سرکار آ گئے کہ رکن تمہیں جانے لینے تم نے جان لیا کہ سرکار آ گئے، بولو۔ تو سانپ نے جواب دیا تھا مجھ سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، نبی کے دوستوں سے پوچھو۔ میرے پیارے نبی کے صحابی جب پیارے نبی سے ملنے آتے تھے ان کے گھر پہ، اگر نبی موجود نہیں رہتے تو صحابی کسی سے پوچھتے نہیں بلکہ سونگھتے کہ پسینے کی خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، جدھر سے خوشبو آتی صحابہ اسی راستے چلے نکلتے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہوئے نظر آتے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ امتی ہیں، میرے نبی آقا ہیں، آپ غلام ہیں، وہ مخدوم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے۔ نبی اور امتی ایک نہیں، غلام اور آقا ایک نہیں، اس لیے کہ یہ غلام وہ آقا پسینہ پسینہ برابر نہیں ہے۔ اور جب پسینہ پسینہ برابر نہیں ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم خاکی مخلوق ہیں اور مصطفیٰ پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور جب پھول ہے تو پھول کی خوشبو ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پیار سے بولیے، جھوم کے بولیے، ارے بولیے مچل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی پھول ہیں، میرے نبی پھول ہے، میرے نبی پھول سے خوشبو ملتی ہے نا، ارے بولو بھائی پھول سے خوشبو، خوشبو بولو نا بھائی، خوشبو ملتی ہے۔ اور جیسے مصطفیٰ اس گڈھے کے اندر گئے خوشبو پھیلی، سانپ سوراخ کے اندر تھا، خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا، وہ سمجھ گیا کونین کا تاجدار آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، رسولوں کا سردار آ گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میں 600 برس سے ہوں، وہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ سانپ بے چین ہوا، اس سوراخ کے پاس گیا دیکھا منہ بند، اس سوراخ کے پاس گیا دیکھا منہ بند، اس سوراخ کے پاس گیا دیکھا منہ بند، 69 سوراخ کا چکر لگا لیا، ہر جگہ کپڑے کا ٹکڑا، منہ بند، نکلے تو کدھر سے نکلے، سانپ پلٹا اور ایک سوراخ کے پاس آیا، وہاں پر اس کو نرم گوشت نظر آیا۔ اس سانپ نے اپنی زبان سے اس تلوے کو چاٹا، اور جیسے چاٹنا صدیق اکبر کا تلوا تھا، درد محسوس ہوا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی کاٹ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آمی کھانے آچھی، پریشان نہیں۔ لعاب دہن نکالا اور نکال کر سرکار نے صدیق کو دیا اور فرمایا اس کو لگا لو، زخم دور ہوگا۔ جیسے صدیق نے پاؤں ہٹایا
लुआब को लेकर लगाने के लिए, वैसे ही सांप अंदर से बाहर आया, चारों तरफ चक्कर लगाया, सरकार के सामने बैठा। अब बैठकर अपने माथे की आंख से मेरे नबी को दिल भर के देखा और देखबार पौरे जिधर से आया था उधर वो चला गया। उसके चले जाने के बाद मैंने आलम ख्याल में, बरकाती ने आलम ख्याल में, आप सुन्नियों ने आलम ख्याल में, इन उलमा अहले सुन्नत ने आलम ख्याल में उस सांप से पूछा, ऐ सांप बता, खुदा ने तेरी फूंक में इतना पावर दिया कि तू काटे नहीं, अगर सर के ऊपर आके फूंक दे तो जिंदा आदमी मर जाए। जब तेरी फूंक में इतना पावर है तो तू अगर 69 सुराख पे फूंक मारता तो जो कपड़ा था वो कपड़ा निकल जाता, तू बाहर आके नबी को देख लेता, मगर तूने कहीं फूंका नहीं, तू उस सुराख के पास आया जहां सिद्दीक का तलवा था। आखिर वजह क्या है? तो सांप ने जो जवाब दिया था, भाइयों उस जवाब को सुनो। सांप ने जवाब दिया, सखावत हुसैन बरकाती बांग्लादेश इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस से তুমি বলে দাও कि আমি কি বলছি। सांप ने जवाब दिया कि मुझे मालूम था कि 1400 बरस के बाद कुछ लोग पैदा होंगे जो कहेंगे हमको वसीले की जरूरत नहीं, हमको बीच में वास्ते की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं। इसीलिए मैंने सिद्दीक के तलवे को पहले चाटा, इसलिए कि नबी को देखना था। तो मैं आज बता रहा हूं कि मुस्तफा की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाओ। नबी तक पहुंचने के लिए सिद्दीक का तलवा चाहिए। जिसको सिद्दीक मिल गए उसको मुस्तफा की बारगाह मिल गई। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। अब अकीदा दो हमें मिलता है। को तो अकीदा पावा गए छे दूटा, को तो, अरे बोलो भाई, को तो दूटा। एकटा अकीदा शिया सुन्नी, एकटा अकीदा सुन्नी वहाबी। ওলামা ইকরাম গওয়া আছেন, বলবো? আরে বলুন না দাদা, বলবো? শিয়া বলছে আমাকে সাহাবা দরকার নেই, আহলে বাইত আতহার কাফি। সিদ্দিক আকবর দরকার নেই, উমরে ফারুক দরকার নেই, उस्मान गनी दरकार नहीं, बेलाल हबशी दरकार नहीं, अली काफी, हसन काफी, हुसैन काफी, फातिमा काफी। सरकार के घर वाला मिल गया, सब मिल गया, दर वाले की जरूरत नहीं है। सांप ने जवाब दे दिया, ओ शिया बिरादरी के लोगों सुनो, तुमने मेरे नबी का इरशाद सुना होगा। मेरे नबी ने घर वालों को फरमाया था, अहलो बैती का सफीनत नूहिन, मेरे घर वाले ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। और दर वालों के लिए कहा था, सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबी सितारों की तरह हैं। इसलिए तुमको कश्ती भी चाहिए और रास्ता पाने के लिए सितारा भी चाहिए। कश्ती मिली, सितारा न मिला, भटक गए। सितारा मिला, कश्ती न मिली, भटक गए। अहले सुन्नत के पास इसीलिए अहले बैत अतहार का भी प्यार है, सहाबा के भी प्यार है। বলুন দাদারা, বুঝতে পেরেছেন? বলুন না, আমি খুব ভয় খাচ্ছি। বলুন দাদা, আমি খুব এই জন্য ভয় খাচ্ছি কি আপনারা বুঝতে পারছেন কি বুঝতে পারছেন না। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, आपने समझ लिया। आज हमें और आपको ये भी समझना होगा सुन्नी किसे कहते हैं और शिया किसे कहते हैं। ठहर जाओ, हक बोलने दो, मना मत करना। आज मैं भारतीय हूं, अकेले भारतीय, बरकाती नहीं बोल रहा हूं, पूरा भारत बोल रहा है। बरकाती नहीं बोल रहा है, पूरा इंडिया बोल रहा है। आज इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हम दाढ़ी वाले, हम टोपी और पगड़ी वाले, हम कुर्ता पाजामा वाले, ये सब सुन्नी मुसलमान भाई जिधर से गुजरते हैं
ادھر سے غیر کہتے ہیں یہ مسلمان مسلمان بھاگو مسلمان আর কাছে বম আছে মুসলমান ভাগো আর কাছে পিস্তল আছে মুসলমান ভাগো বম ব্লাস্ট হবে মুসলমান ভাগো ये दहशतगर्द আছে ये जंगजू আছে क्यों कहता है इसलिए कहता है कि मुल्क शाम यानी सीरिया मुल्क इराक मुल्क नाइजीरिया मुल्क अफगानिस्तान इन जगहों पे कुछ ऐसे टोपी पगड़ी और कुर्ता पाजामा वालों ने जो काम किया है जिसमें से एक का नाम दाइश जिसको ISI कहते हैं एक का नाम तालिबान दूसरे का नाम अल कायदा एक का नाम बोको हराम ये चारों के चारों टीम अपने आप को सुन्नी कहलाती है ए बांग्लादेश के सुन्नियों धोखा मत खाना कि जो भी सुन्नी कहे वो सुन्नी हो जाए नहीं नहीं सुन्नी वही होगा जो बगैर किसी कसूर के किसी आदमी को नहीं मारेगा कहीं बम नहीं फेंकेगा कहीं पिस्तौल नहीं चलाएगा इसलिए कि कुरान कहता है मन कतला नफ्सम बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतला नासा जमीआ जिसने किसी एक आदमी को बगैर किसी कसूर के कत्ल किया वो आदमी को कत्ल नहीं किया पूरी आदमियत को कत्ल कर दिया वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ और जिसने एक आदमी को जिंदगी दे दिया वो एक आदमी को नहीं पूरी आदमियत को जिंदगी दे दिया प्यार से बोलो इसलिए सुन्नी जंगजू नहीं होता सुन्नी दहशतगर्द नहीं होता इसलिए कि सुन्नी के नबी ने दहशतगर्दी नहीं सिखाया प्यार सिखाया है झूम के बोलो सुन्नियों के नबी ने मोहब्बत सिखाया है सुन्नियों के नबी ने कसूरवार लोगों को माफ करके दुनिया वालों को सबक दिया कि बदला लिया जा सकता है लेकिन उससे बड़ा काम है मुआफ कर देना अगर कातिल को कत्ल कर दिया जाए तो कलमा कौन पढ़ेगा तवज्जो हाजिर करो मैदान बद्र आछे बद्र के मैदान में लड़ाई हुई जो काफिर पकड़े गए सरकार की बारगाह में हाजिर हैं मेरे आका मशवरा लेते हैं साहबा से ए साहबा इनार जन्नो तुम्हार की राय आछे इनार संगे की करा जाबे बोलो बोलो एक साहबी कहते हैं हमारे इख्तियार में दे दीजिए हम उसको कत्ल कर देंगे जिसके रिश्तेदार को मारा उसके हवाले कर दीजिए वो कत्ल कर देगा प्यारे नबी फरमाते हैं जब इसको तुम कत्ल कर दोगे ये मर जाएगा तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन पढ़ेगा आका फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम प्यारे नबी फरमाते हैं छोड़ दो इनको माफ कर दो जैसे नबी की तरफ से माफी का ऐलान हुआ ऐ काफिरों जाओ जैसे माफी कहा सरकार के कदमों पे गिरे और गिर करके कहते हमरा जाबो ना केनो जाबे ना कहा नहीं आप जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं आप जैसी मोहब्बत देने वाला कोई नहीं हम तो इतना बड़ा पापी था हमको कत्ल कर दिया जाता मगर आपने माफ कर दिया इसलिए आप अच्छा आदमी है इसलिए आज तक हम काफिर थे लेकिन आज के बाद से आपका कलमा पढ़ के हम मुसलमान बनते हैं झूम के बोलिए और दूसरा एक हमें अकीदा मिलता है दुटो अकीदा तो एक अकीदा शिया के बारे में सुना और दूसरा अकीदा आजकल जो गली गली कूचा कूचा घूमता है ना यहाँ पे लेकर के ये बोलो सुभान अल्लाह बोलून दादा এখানে কিছু থাকে अरे बोलो ना हाथ में किसी थाके बोलो ना ये जो गली गली घूमता है और गली गली घूम के बोलता है अल्लाह की बात कर लो अल्लाह की बात कर लो अल्लाह की बात कर लो अबे कौन गैरुल्लाह की बात करता सब तो अल्लाह की बात करता है
কে গেরুল্লাহর কথা করে? সবাই লোক তো আল্লাহর বাত করে, আল্লাহর কথা করে। আরে বলুন না। কিন্তু तुम्हारे में और हम में फर्क है। क्या फर्क? तू जब बच्चा पैदा करता है तो बीवी को शौहर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बच्चा का नहीं, शौहर चाहिए, हस्बैंड चाहिए। का सुन, अल्लाह की बारगाह तो सबसे बड़ी बारगाह, उसके महबूब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह खुदा ने इतनी बड़ी बनाया है कि साहबा के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता, अहले बैत अतहर के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। तुमको अगर सबक नहीं मिलता, चल गारे सौर के अंदर सांप से पूछ ले। सांप जब रसूल की बारगाह तक पहुंचना चाहा तो पहले सिद्दीक तक पहुंच गया, तब मुस्तफा जाने रहमत मिल गए। ए बाशियों बांग्लादेश के, ए सुन्नियों बांग्लादेश के, ए आशिकों बांग्लादेश के, बरकाती को कह लेने तो वो सांप खुशकिस्मत था जिसके निगाहों के सामने सिद्दीक का तलवा था, वो सिद्दीक तक पहुंचा, नबी मिल गए। लेकिन आज हमारे सामने कौन है जिसके पास पहुंचे तो हमको रसूल मिल जाए? तो बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, वो सिद्दीक की बारगाह थी जो सांप को मिली थी, मगर हम सुन्नियों को बगदाद के गौस का आस्ताना मिल गया है। लिखते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। इसका मतलब यह है আমরা যা কিছু বলতে পারছি আপনারা সবকিছু আপনারা বুঝতে পারছেন। দাদা सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। जरा हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मत गिराना हाथ को। ए मेरे बगदाद के गौस देख लो ये कादरी हैं, ए अजमेर के गरीब नवाज देख लो ये सब चिश्ती हैं, एक करबला के हुसैन देख लो ये हुसैनी हैं। जब ये हुसैनी है परवरदिगार इन सबों को अपने महबूब का दीवाना बना ले और अपने महबूब का प्यारा मदीना दिखला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह बड़ी बारगाह। बोलो ना भाई, मेरे नबी की बारगाह बड़ी बारगाह। उस बारगाह तक पहुंचने के बाद आदमी कितना अच्छा होता है इसको समझो। बड़े को समझने के लिए छोटे को समझना पड़ता है। बड़ों के समझबार बुझबार जोन्नो छोटों के बुझते होबे। अरे बोलो ना भाई, हैं? छोटों के बुझते होबे। बड़ा कौन? नाना है। छोटा कौन? नाती है। नाना है तो नबियों में बेमिसाल और नाती है तो दुनिया भर के नातियों में बेमिसाल। नाना का नाम सरदार अंबिया और नातिर नाम बोलो ना भाई सैयदुश शुहदा। सुभान अल्लाह। कौन है सैयदुश शुहदा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में निकले हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। छोटो छोटो बच्चारा खेल कूद करछे। नबी को आता देखा, बच्चों ने खेल छोड़ दिया, सामने नबी के आ गए और एक एक बच्चे ने अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने हर एक का जवाब दिया। बच्चे जवाब ले लेके जाते रहे, मगर एक बच्चा इरकम छिलो, प्यारे नबी ने उसको उठाया और उठाकर उसकी पेशानी को नबी ने चुम्मा दे दिया। झुमके एक बच्चा के पेशानी को नबी ने चुम्मा दे दिया। वो बच्चा रोने लगा, अपनी किस्मत पर फख्र करने लगा, दौड़ा हुआ अपने घर गया। अम्मा की होलो? नबी আমাকে দেখেছেন, কি বললেন? কিছু বললেন না, আমার মাথাকে একটা চুম্মা দিলেন।
अरे बोलो ना भाई। अभी मां खुशी में मचल रही थी, जितने बच्चे खेल रहे थे सब बच्चे अपने घर गए और अपनी मां की उंगली पकड़ के उस बच्चे के घर। अब हर एक की मां पूछ रही है, हे बुबू तुम्हार बच्चाटा की काज करेছে? কিছু তো নেই। আমার বাচ্চা সালাম দিল, তোমার বাচ্চা সালাম দিল। নবী আমার বাচ্চাকে চুম্মা দিলেন না, তোমার বাচ্চাকে চুম্মা দিলেন কেন? मां कहती है मुझको मालूम नहीं। अब ये सारी औरतों का काफिला नबी की बारगाह में पहुंचा। मुस्तफा जाने रहमत फैसला सुनाओ। आप ना इंसाफी कर नहीं सकते, आप तो इंसाफ वाले हैं। इतने सारे बच्चों ने सलाम किया था, आपने एक ही बच्चे को सलाम, एक ही बच्चे के पेशानी को बोसा दिया। सरकार फरमाते हाँ तार कारण अच्छे। बोलो भाई, प्यार से बोलो, तार कारण की कारण? नबी फरमाते हैं एक दिन मेरे साथ मेरा नाती हुसैन था। हुसैन का बचपना, हुसैन आगे आगे आमी पीछे पीछे। ये छोटा बच्चा माछ खाने ऐसे बीच में आकर हुसैन जैसे चल रहे हैं बच्चा वैसे ही चल रहा है, और मेरे हुसैन का पांव जमीन पे जहां पड़ता है ये बच्चा वहां से मिट्टी उठा के अपनी पेशानी पे लगाता है। प्यार से बोलो, ये बच्चा के अमी देखे थी। हुसैन का पांव जहां पड़ा और पढ़ने के बाद उठा, ये बच्चा मिट्टी उठाया पेशानी पे लगाया और लगा लगा के हुसैन का पीछा करते करते जा रहा था। आज जब मैंने बच्चों को देखा तो इस बच्चे को मैंने पहचान लिया कि यही बच्चा है जो मेरे हुसैन के तलवे से लगने वाली मिट्टी को अपनी पेशानी की जीनत बना रहा था। तो नबी ने फरमाया यही जन्नो हमरा बच्चा के पेशानी के बोसा दिए थी, चुम्मा दिए थी। ऐ सुन्नियो, नबी के तलवे की बात नहीं, रसूल के तलवे की बात नहीं, रसूल के बेटे हुसैन के तलवे की बात। जब हुसैन का तलवा इतना पावरफुल कि उस तलवे से जो मिट्टी लगे वो मिट्टी बच्चे की पेशानी पे आ जाए तो पेशानी चमकदार, नबियों का सरदार चुम्मा दे। जब बेटे के तलवे का इतना पावर है तो मुस्तफा जाने रहमत नबियों के सरदार हैं, रसूलों के इमाम हैं। बोलो उनके तलवे का कितना पावर होगा। झूम के बोलो। आज कुछ लोग कहते हैं नबी पावरफुल नहीं। नबी हमने कहा कि पावरफुल आछन तो क्या की रकम तुम ही जान ले? हमने कहा हाँ, दरिया के इस पार खड़े हैं और उस पार बीच में पानी, एक पत्थर है, उस पत्थर को बुलाया, पत्थर आजा। तो पत्थर पानी में तैरता हुआ, तैरता पानी में, पानी केटे केटे चोले आसलो छात्री है। अरे बोलो भाई, समझ रहे कि नहीं आप लोग? नबी की बारगाह तक आ गया और जैसे मैंने कहा, जरा इसको कम करो भाई, जरा इसको कम करो। जैसे मैंने कहा नबी का इशारा था, कहे नबी का इशारा नहीं था, ये तो खुदा का हुक्म था। मैंने कहा हाँ हाँ, खुदा की मर्जी के बगैर दरख्त का पत्ता नहीं हिलता। अरे बोलो ना जी, ये सामने बच्चा है, तुम सामने खड़ा है, हम पूछता कौन, तू बोलता मेरा बेटा, एक तमाचा मारा। अबे खुदा का बंदा है, मेरा बेटा क्या बोलता? अरे बोलो ना जी, अरे बोलो। একটা মহিলা আছে, নেকাবপোশ মহিলা, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বললাম কে, तुम्हें লজ্জা লাগে না?
মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছ, আরে কেন লজ্জা লাগবে? আমার স্ত্রী আছে, এক তামাচা মারা, খবরদার খোদার বন্দি আছে, তুমি স্ত্রী বলছো। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी काम करो अल्लाह की मर्जी के बगैर, अरे बोलो, नहीं होता। लेकिन वो काम अपनी तरफ मंसूब होता है, अपनी तरफ मंसूब, अपनी तरफ अपने साथ संपर्क होता है। बिलाशुबा पत्थर चला था खुदा का हुक्म पाकर, लेकिन इशारा तो नबी का था, इशारा तो नबी का था। और अगर नहीं मानते तो चलो, मक्के के काफिरों ने कहा कि ऐ नबी, अगर आप नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े कर दो। मुस्तफा जाने रहमत जमीन पर खड़े खड़े उंगली का इशारा करते हैं तो चांद सीना चीर के 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कलम उठा के लिखते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारी शान ही निराली है। तुमको खुदा ने इतना पावर दिया, तुम दिन को रात कह दो तो रात हो जाए, रात को दिन कह दो तो दिन हो जाए। तुमने गुलाम को आका कह दिया तो आका बन गया, आका को गुलाम कहा तो गुलाम बन गया। तुमने अगर एक कुएं को मीठा कुआं कह दिया तो खारा पानी मीठा बन गया। झूम के बोल दो, प्यार से बोल दो, ये सही है, खुदा का हुक्म होता है, लेकिन खुदावंद कुद्दूस की रहमत भी महबूब का इशारा देखती है, नबियों के इमाम का इशारा देखती है। अगर यकीन नहीं होता तो तवज्जो हाजिर करो, मेरे नबी का इशारा कितना पावरफुल है, तवज्जो हाजिर करो। हजरात, आपको मालूम है इस्लाम में जब से नमाज फर्ज हुई है, যখন থেকে নামাজ ফরজ হয়েছে তারপরে 17 महीने तक कमोबेश बैतुल मकदिस को मुंह करके नमाज पढ़ी जाती रही। लेकिन मेरे नबी 17 महीने के बाद एक दिन असर की नमाज में हैं, 2 रकत पढ़ चुके हैं, 2 रकत के बाद अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाते हैं और उठा के दिल में ख्याल करते हैं, परवरदिगार, यहूदी का दीन अलग, इस्लाम अलग, नसरानी का दीन अलग, इस्लाम अलग, ईसाइयों का दीन अलग, इस्लाम अलग। मेरे जाने के बाद यहूदी ताना देंगे मेरे कलमा पढ़ने वालों को, कैसे मुसलमान, जो किबला हमारा है वही किबला तुम्हारा है। जब तुम्हारा मजहब अलग तो तुम्हारा किबला अलग क्यों ना हुआ? इसलिए या खुदा, मेरे कलमा पढ़ने वाले ताना न सुने, बदल दे किबला को। महबूब ने नजर उठाई, दिल से अर्ज किया, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और हाजिर होकर कुरान की आयत सुनाया, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब, आसमान को बार बार देखना अल्लाह ने देख लिया है, तुम यही चाहते हो किबला बदल दिया जाए, घूम जाओ। नबी घूम गए, उसके बाद से मुसलमानों का किबला खाने काबा बन गया। बोलो बोलो, प्यार से बोलो, बुझता पेरेशन दादा, हाथ का हाथ को उठा के समर्थन कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलो बोलो, किबला बदलने वाला कौन? अल्लाह ताला है। जिब्रील को भेजने वाला कौन? लेकिन नबी ने दिल से चाहा या नहीं? अरे बोलो ना। तो जब हर काम खुदा की मर्जी से होता है और मुस्तफा जाने रहमत की चाहत होती है, तो मेरे नबी की उंगली में भी खुदा ने पावर दिया है। अगर उंगली का इशारा हो जाए तो 2 टुकड़ों में चांद, बोलो ना भाई, बट जाए। और अभी भी नहीं समझ में आया? बांग्लादेशियों, बांग्लादेशी सुन्नियों, आशिकाने मुस्तफा, तवज्जो हाजिर करो। क्रिकेट अपनारा देखेছেন? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो,
ক্রিকেট ম্যাচ ক্রিকেট খেলাটা দেখেছেন আপনি? বলো না ভাই, একটা ব্যাটসম্যান, একটা বলার, একটা ফিল্ডার, একটা উইকেট কিপার, আরে থাকে কি না থাকে? अरे बोलो ना, अब जरा सा तवज्जो हाजिर करो थोड़ी सी। अरे बोलो ना भाई, तवज्जो हाजिर करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो इसको तवज्जो के साथ। बांग्लादेश और श्रीलंका का 2020, अरे बोलो ना भाई, बांग्लादेश और श्रीलंका का बोलो भाई 2020, बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने सेंचुरी बनाई, 203 रन बन गए। श्रीलंका की टीम बैटिंग करने उतरी तो बांग्लादेशी बावर बालर हावी हो गए, एक एक करके आउट करते रहे 199 ओवर, 19 ओवर खत्म, 197 रन यानी 197 रन बन गया। कितना रन बाकी है? और अरे जीतने के लिए कितना? अरे बोलो ना भाई, कितना? 7 रन, 203 बनाया है, 197 बन चुका है। जीतने के लिए कितना रन? अरे बोलो, 6 बॉल 7 रन, 9 विकेट श्रीलंका की गिर गई, 9 खिलाड़ी आउट, 1 बैट्समैन बाकी। अब मिस्टर कैप्टन ऑफ बांग्लादेश सोचता है किसको देगा आखिरी ओवर फेंकने के लिए। मुशफिकुर रहमान, ऐसे जाओ, आ गया मुशफिकुर रहमान। मुशफिक, तुम्ही शफकत वाला आछो? हाँ, আমি शफकत वाला আছি। दे दो बांग्लादेश के प्यार। সবাই লোকরা চুপচাপ খামোশ। কি হবে? শ্রীলঙ্কা জিতবে না বাংলাদেশ? কি হবে? ঘরে টিভি কাছাকাছি, আব্বা চুপ, আম্মা চুপ, বেটা চুপ, বেটি চুপ, সবাই চুপ। কলবে ভিতরে মেম্বার চুপ, প্রেসিডেন্ট চুপ, सदर चुप, सेक्रेटरी चुप, सबाई चुप। बाइक चलाने वाला गाड़ी रोक करके कान में ठूस लिया है, चुप। पुलिस वाला बोलता आगे जाकर तक कि हमें मिस्टर मुशफिकुर रहमान ऐसे जाओ। मुशफिकुर रहमान मियां आए, 1 ओवर 6 बॉल, 1 विकेट 7 रन। मिस्टर मुशफिकुर रहमान ने फेंका 1 बॉल, सीधे ड्रॉप खाके विकेट कीपर के हाथ में। बिल्कुल स्टेडियम में सन्नाटा, घर में सन्नाटा, बांग्लादेश में सन्नाटा। दूसरा बॉल फेंका विकेट कीपर के हाथ में, तीसरा बॉल फेंका विकेट कीपर के हाथ में। ऐसे आलम में 3 बॉल 7 रन, 1 छक्का लग गया तो ड्रॉ। होगा क्या? चौथी गेंद ड्रॉप खाई, खाने के बाद बैट्समैन के पैर से लगी। जैसे लगी वैसे ही 11 खिलाड़ी जो बांग्लादेश के थे सबों ने चिल्लाया आउट, आउट, आउट। ऐसे आलम में बीच में मैदान के अंदर काला पैंट, लाल कोट, गोल टोपी पहने एक आदमी खड़ा है, उसको जाके घेर लिया। जैसे घेरा वैसे ही उसने पीछे हाथ किया। हमने सोचा मच्छर काटा है, खुजलाने लग गया होगा, मगर नहीं, पीछे से घुमा के सर के ऊपर से एक उंगली निकाल दिया। बोलो ना भाई, जैसे उंगली उठाया वैसे ही बांग्लादेश का स्टेडियम चिल्लाने लगा। क्लब के अंदर चिल्ला चिल्ली, घर के अंदर चिल्ला चिल्ली, रास्ते में चिल्ला चिल्ली। बांग्लादेश जीत गया, बांग्लादेश को मुबारक हो, इसलिए कि आउट करार दिया गया। मैंने कहा मैं मानने को तैयार नहीं। बरकाती साहब केमन अपनी मानबे? हमें मानबो मानबो मानबो। हुजूर আপনার নামটা কি? হ্যাঁ, নুরুল কবির। আমি গেছি নুরুল কবির কাছে, আল্লামা নুরুল কবির কাছে। আমি বললাম কে দা হুজুর এ কে আছে? কা कौन? हमने कहा काला पैंट, लाल कोट और टोपी वाला। कहा अंपायर कहा जाए। हमने कहा कि अंपायर कौन बनाता है? का आईसीसी। हमने कहा आईसीसी कौन? का इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। हमने कहा सुनिए, का हुआ क्या? का हमने उसकी उंगली को देखा, का उंगली में क्या था? का पावर वाला था। का कैसे? हमने कहा जब तक उसकी उंगली उठी नहीं थी बांग्लादेश चुप था, बांग्लादेश चुप था, स्टेडियम वाला चुप था, घर वाला चुप था, क्लब वाला चुप था, मौलाना चुप, पैसेंजर चुप,
स्टूडेंट चुप, मास्टर चुप, सब चुप। जैसे उंगली उठा पूरा बांग्लादेश चिल्लाया। का क्या मतलब? हमने कहा उसकी उंगली को देखा। का क्या था? का उठने से पहले सब चुप, उठने के बाद सब चिल्लाया का जीत हो गया। हमने कहा बस समझ लिया, जिसको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अंपायर बना के खड़ा कर दे, उसकी उंगली जब इतनी पावरफुल कि जब तक न उठे उस वक्त तक सब चुप हो जाए, और जब उठ जाए तो सब जीत जीत चिल्लाए। तो बोलो बोलो, जब अंपायर की उंगली इतनी पावरफुल हो सकती है तो मेरे रसूल को खुदा ने नबियों का इमाम बनाया है, रसूलों का सरदार বাংলাদেশ। अरे बोलो दादा, बोलून ना दादा। आईसीसी जिसको अंपायर बना दे, जब उसकी उंगली पावरफुल हो सकती है तो मेरे खुदा ने मोहम्मद अरबी को नबियों का इमाम बनाया है, रसूलों का सरदार बनाया है, तो मेरे नबी की उंगली क्यों पावरफुल नहीं होगी? अब सुनो, एक उंगली है जब उठी है चांद दो टुकड़ों में बटा है, एक उंगली है जब उठी है तो डूबा हुआ सूरज पलटा है। जब एक उंगली का कोई जवाब नहीं, पांच का क्या जवाब होगा? जब फैलाया है नबी ने तो पानी का फव्वारा जारी हुआ है, 1500 सहाबा को प्यास। झूम के बोलो, मचल के बोलो। और जब 5 उंगली का कोई जवाब नहीं तो 10 का क्या जवाब होगा? बोलो। यही वो 10 उंगलियां हैं जब हरकत में आएंगी, आज नहीं कल मैदान महशर में ये गुनहगार उम्मत, ये नबी की वफादार उम्मत जब गुनाहों की गैठी पीठ में लेके दोज़ख में जाएगी तो मुस्तफा प्यारे को बर्दाश्त न होगा। मेरा नबी हाथ उठाकर 10 उंगलियों को फैलाएगा और फैलाकर इतना रोएगा खुदा की बारगाह में, इतना रोएगा कि आला हजरत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। प्यार से बोलो। नबी रो रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, परवरदिगार ये सही है, मेरी गुनहगार उम्मत गुनहगार है, सियाकार आछे गुनहगार आछे, मगर तुमी जानो परवरदिगार आमार गुलाम आछे। मौला इनके गुनाह को मत देख, मेरी गुलामी के सदके में इनको बख्श दे। नबी दुआ करते हैं और नबी की दुआ कितनी पावरफुल होती है। लिखते हैं आला हजरत, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मुस्तफा की दुआ बाबे इजाबत को खटखटाती हुई जब अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई तो खुदा ने फरमाया, महबूब 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 आमी बोले रखेছি ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রব্বুকা ফাতারদা, अन करीब मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। बोलो महबूब कितना चाहिए? प्यारे नबी कहेंगे, खुदा मेरे गुलाम को बख्श दे, जन्नत में भेज दे। खुदा फरमाएगा, जा तू भी जन्नत में चला जा, अपने गुलामों को लेके जन्नत में चला जा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निजेर गुलाम के संगे निये जन्नते जाबेन। बोलुन ना दादा, निजेर गुलाम के संगे निये कोथाय जाबेन? जन्नते जाबेन। गुलाम भितरे के थाकबे?
হযরতে আওয়েসে করনি থাকবেন, গোলাম ভিতরে কে থাকবে? হযরতে বেলালে হাবশি থাকবে। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? বাগদাদের গৌসে আজম থাকবে। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? আজমেরে গরিব নওয়াজ থাকবে। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? হুজুর সৈয়দ শাহ আহমদ সরকাটি থাকবে। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? হুজুর সৈয়দ শাহ তৈয়ব আলী থাকবেন। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? কচৌচারে মখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সমনানি থাকবেন। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? বরেলির আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান থাকবেন। গোলাম ভিতরে কে থাকবে? মারারা মুকদ্দাসা কে শাহ বরকতুল্লাহ থাকবেন। আপনারা পীর থাকবেন, আপনারা মুর্শিদ থাকবেন। बोलो बोलो, जब दावत में अब्बा जाता है तो दावत खा के आता है। बेटा अगर कहीं छूट गया तो बाप गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, बेटे को साथ लेता है तब आता है। जब बाप बेटे को छोड़कर अकेले घर नहीं आता तो गौसे आजम कादरियों को छोड़ के जन्नत में कैसे जाएंगे? गरीब नवाज चिश्तियों को छोड़ के जन्नत में कैसे जाएंगे? हमारा मुर्शिद जहां होगा हम गुलाम भी वहीं होंगे। बोलो, प्यार से बोलो। हजराते ग्रामी, আমাকে মনে রাখবেন আপনি? আর বলুন না দাদা, আমি 30 তারিখ ইন্ডিয়া চলে যাব। এ তো মোহব্বত আছে মৌলানা আহমদ রাজা, যিনি রংপুরে থাকেন। উনি আমার সম্পর্ক চিটাগাং বাসীর সঙ্গে করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ সম্পর্ক হয়ে গেছে। दुनिया की कोई ताकत इस संपर्क को तोड़ नहीं सकती, इसलिए कि ये संपर्क खूनी संपर्क नहीं, ये संपर्क खानदानी संपर्क नहीं, ये संपर्क इलाकाई संपर्क नहीं, ये संपर्क ईमानी संपर्क है, ईकानी संपर्क है। और ईमानी और ईकानी संपर्क उसको कहते हैं कि घर से करीब है नबी के अबू जहल, लेकिन दूर है उतबा नबी के घर से नजदीक, लेकिन दूर है। लेकिन हबश से आने वाला बिलाल आया है, मुस्तफा के दिल में जगह बना लिया है। फारस से आने वाला सलमान आया है, मुस्तफा के दिल में जगह बना लिया है। इसीलिए कह लेने दो, मेरे नबी से हम कल भी नजदीक थे, आज भी नजदीक है, सुबह कयामत तक नजदीक रहेंगे। বলুন দাদা, বলুন একটা দরুদ শরীফ শুনান আপনি। জি सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा अंदाज आप लोगों के दुरूद पढ़ने का है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपना दिल और जिगर निकाल के आपको दे दूं, इसलिए कि दिल मेरे पास है लेकिन कंट्रोल अपना नहीं है। और आपके पास भी तो दिल है। अरे बोलो ना भाई, तो क्या कंट्रोल आपका है दिल पर? अरे बोलो ना। जो दुनियादार होता है उसका दिल अपने कंट्रोल में रहता है, और जो दीनदार मजहबी होता है, सुन्नी सयूल अकीदा होता है, दिल उसके सीने में होता है लेकिन कंट्रोल मुस्तफा प्यारे के हाथों में होता है। झूमकर बोलिए। इसीलिए कहता हूं कि सुन्नी के दिल को निकाल के 2 हिस्सों में बांट के चीर दो। एक हिस्सा पुकारेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा पुकारेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कि ये दिल नहीं है, ये दिल तो इश्क रसूल का मदीना बन गया है, ये दिल तो मोहब्बत रसूल का मदीना बन गया है। और इसी दिल के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान लिखते हैं कि जानो दिल होशो खिरत
سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ حضرات مکرم আপনারা যাচ্ছেন নাকি؟ আচ্ছা সুবহানাল্লাহ, কেন যাবেন আপনি? আমি যেখানে আপনি ওইখানে। এখন তো আমরা যাব আজমের শরীফ, তারপরে যাব বাগদাদ শরীফ, তারপরে যাব কারবালা শরীফ, তারপরে যাব মদিনা শরীফ। ঝুমকর বলিয়ে, और जो बंदा भारत बांग्लादेश पाकिस्तान या दुनिया के कोने में रह के दिल अगर मुस्तफा की बारगाह में भेज दिया तो याद रखो जिंदगी में उसकी मेराज है, उसकी किस्मत का सितारा बुलंद है। और ये काम कौन करता है? ये काम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान करता है, ये किसी और का काम नहीं है, मुसलमान का काम है, सुन्नी सहीउल अकीदा का काम है। हजरात मुकर्रम, मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि आप सब आशिक रसूल हैं, आप सब मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। याद रखो दीन और इस्लाम का काम टीवी के जरिए नहीं होता। आज सुन्नी कहता है कि टीवी उनके पास, मीडिया उनके पास, तो हमारे इस्लाम का प्रचार, हमारी सुन्नियत का प्रचार कैसे होगा? ऐ सुन्नियों, इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस में बरकाती को कह लेने दो, उनका चैनल उनको मुबारक हो। हमारे पास जो चैनल है उस चैनल से मजबूत उनका चैनल नहीं है, इसलिए कि हमारे पास कादरी चैनल है, हमारे पास चिश्ती चैनल है। लेकिन फर्क है, ऐ सुन्नियों, दिल का एक दर्द मुझको बोल लेने दो। ये दर्द है, दर्द जो निकल रहा है कि आप बड़े जिम्मेदार हो, अपनी बड़ो जिम्मेदार आছেন, আপনারা ভাবছেন নামাজ মৌলানা পড়বে, আজান মৌলানা দেবে, ফাতিহা মৌলানা করবে, দরুদ মৌলানা পড়বে, জিহাদ মৌলানা করবে, কোরআন খানি মৌলানা করবে। আমরা কিচ্ছু করব না, খাবো, কাজ করব, ঘুমাবো। आज उठा करके देखो तारीख, गैरों के यहां कोई मौलवी नहीं, उनकी पब्लिक उनका काम कर रही है। लेकिन आप सुन्नियों, आपने सब काम में भरोसा कर लिया मौलाना पर, आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। बच्चा पैदा होता है, अजान मौलवी दे, बाप मां मर जाए, जनाजा मौलवी पढ़ाए, तुम किस दिन के लिए हो? आज इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ये बात इरादा में दाखिल करके निकलो, इस बात को निजर मोने रेखे बेरोबेन कि आमरा मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, हनफी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, कादरी मुसलमान, मसलक आला हजरत में रहकर काम करने वाला मुसलमान, और जो मसलक आला हजरत का पैरोकार होता है वो जहां होता है एक तंजीम बन जाता है, जहां होता है एक इदारा बन जाता है, अकेले जहां होता कमेटी बन जाता है। तुम मत समझना कि खुदा ने तुमको बेकार पैदा किया। कुरान में खुदा फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबस, क्या तुमने सोचा कि खुदा ने तुमको बेकार पैदा किया? नहीं नहीं, तुम काम वाले हो। जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं अजान होगी, जहां अजान होगी वहीं जमात होगी, जहां जमात होगी वहीं पे खुदा की रहमतें उतरेंगी, खुदा की बरकतें उतरेंगी। और अगर यकीन नहीं आता तो तवज्जो हाजिर करो, 1969 में पहली मर्तबा अमेरिका का 3 आदमी चांद पर गया। कितने में भैया? 1969 में। उन तीनों का लीडर था नील आर्मस्ट्रांग। गया अमेरिका का 3 आदमी। सुन लो आखिरी बात, घबराना नहीं, बैठ जाओ 5 से 10 मिनट और ज्यादा नहीं।
तीन आदमी गया ওখানে গিয়ে আমেরিকা ফ্ল্যাগ চাঁদ উপরে গেড়ে দিল, कैमरा নিয়ে फोटो নিল, सीना ठोक कर बोला अमेरिका तो चांद तक पहुंच गया, अब अमेरिका को कौन रोक सकता है। चांद पर हुकूमत करने वाला अमेरिका, जमीन पे आया तीन आदमी। 1969 से लेकर नील आर्मस्ट्रांग को करोड़ों अरबों खरबों रुपए से लोगों ने मालामाल किया, इनाम दिया, लेकिन 1983 में नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था मुल्क शाम यानी मुल्क सीरिया, मुस्लिम दोस्त के घर यानी मुस्लिम बंधु के घर। मुस्लिम बंधु बाड़ी गए छिलो, ওখানে গিয়ে संजो बेला दरवाजे पे दस्तक दिया। जैसे मुस्लिम बंधु ने दरवाजा खोला, अभी अंदर जाना ही वाला था कि अचानक उसके कानों तले आवाज आई, और जब शब्दों सुना तो मुस्लिम दोस्त बोलने लगा कि ভিতরে এসো, চায় হাজির আছে, নাস্তা হাজির আছে, খাবার হাজির আছে, সোফা সেট আছে, বসে যাও। वो उंगली का इशारा करके बोलता रहा खबरदार, ठेके जाओ, ठेके जाओ, ठेके जाओ। वो आवाज जो आ रही थी, आवाज जब बंद हो गई, वो शब्द जो आ रहा था जब बंद हो गया, तो नील आर्मस्ट्रांग ने पूछा, बंधु ये बोलो এটা কি সাউন্ড ছিল? মুসলিম বন্ধু ने कहा, আমি মুসলমান, আমার বাড়ি মুসলিম গ্রামে, ये আমার মসজিদের সাউন্ড ছিল। इस साउंड के की बोला जाए? का अजान बोला जाए। अजान किसर जन्नो? का नमाज जन्नो। नमाज का के बोला जाए? तो खुदार इबादत के बोला जाए। इतना सुनना था। नील आर्मस्ट्रांग कहता है कि बंधु सोफा सेट हटाओ, नाश्ता हटाओ, टी टेबल हटाओ, अपना हाथ दे दो और देकर मुझको कलमा पढ़ा दो। झुम के बोलो। मुस्लिम दोस्त परेशान था, कहने लगा कि नील आर्मस्ट्रांग आखिर बोलो, तुमको किस चीज ने इस बात की तरफ रागिब किया था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम मुसलमान बन जाओ, आखिर वजह क्या थी? ए सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, ए नबी के आशिकों, ए हुसैन आजम के दीवानों, तवज्जो के साथ सुनना। नील आर्मस्ट्रांग ने जबान खोला था और खोल करके कहा था, मुस्लिम बंधु सुनो, मैं जब 1969 में चांद पर गया था तो वहां पे मैंने एक साउंड सुना था, मैं समझा नहीं था क्या साउंड है। जमीन पर आने के बाद भूले गए छिलम कि की साउंड छिलो, लेकिन अभी अभी जब तुम्हारी बस्ती में आया, जब साउंड सुना तो मुझको वो साउंड याद आ गया। जो साउंड यहां था वही साउंड वहां था। पता चला अजान जब जमीन के ऊपर है तो अजान चांद के ऊपर भी है, और जब अजान चांद पर है तो इस्लाम झूठा नहीं हो सकता। प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मुझे कह लेने दो, इस्लाम किसका नाम है? बम फेंकने का नाम इस्लाम नहीं, बंदूक के जरिए रास्ता चलने वालों को मार देने का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम नाम है प्यार के जरिए पैगाम मोहब्बत पहुंचाना का नाम। इस्लाम का यही काम अल्लाह वालों ने किया था। इसलिए इस इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस से आज ये पैगाम आपको दिया जाता है, भाइयों अपने घर जाना, इस्लाम का पैगाम लेकर अपने अकीदे की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत करना, मसलक आला हजरत पर रहना और अल्लाह वालों के साथ दोस्ती करना, खुदा की बारगाह में इबादत करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोजा रखना, माँ बाप का अदब व एहतराम करना, यही पैगाम है जो इस्लाम का पैगाम था। मैंने आपको देने की कोशिश की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस पैगाम को कबूल फरमा ले। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत
تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں. اسلام 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 سنی مسلمان انٹرنیشنل سنی کانفرنس, بنگلہ دیش کا مسلمان, بھارت کا مسلمان, عالم اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.